जय जिनेंद्र। आत्मा चैनल देख रहे सभी दर्शकों का मैं नलिनी स्वागत करती हूं। आज के समाचार कुछ इस प्रकार हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक हुई, जिस दौरान सरकार की ओर से कई बड़े फैसले लिए गए। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बैठक के बाद फैसले की जानकारी साझा करते हुए कहा कि सरकार ने राशन कार्ड बहाल करने का फैसला किया है। सरकार के दौरान ही करीब 10,77,000 कार्ड काटे गए थे, जिन्हें सरकार ने अब बहाल कर दिया है। इसके साथ ही राशन की मुफ्त डिलीवरी भी होगी। शिक्षकों का ट्रांसफर करना होगा आसान। जी हां, शिक्षकों को अपने ही जिले में मिलेगी पोस्टिंग। स्थानांतरण प्रक्रिया पूरे वर्ष खुली रहेगी ताकि शिक्षक तबादले की बजाय विद्यार्थियों की पढ़ाई पर ध्यान दें। साथ ही पंजाब कैबिनेट ने सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी जतिंदर सिंह औलख को पंजाब लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त करने का भी निर्णय लिया है। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਬਹੁਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਬਜਟ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਬਜਟ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਜਿਹੜੇ लगभग 10,77,000 कार्ड ऐसे ने ਜਿਹੜੇ ਕੱਟੇ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਕਾਰਡ ਕੱਟ ਗਏ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਕਾਰਡ ਕੱਟੇ ਗਏ 10,77,000। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਾਟਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ। ਅਗਸਤ 2022 ਤੱਕ ਕਾਰਡ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਜਾਂ ਡੋਰ ਸਟੈਪ ਡਿਲੀਵਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚੂਗਾ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਟਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਅਜੇ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਕਾਰਡ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਕਾਰਡ ਮਿਲੂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣਾ ਕਾਰਡ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ 10,77,000 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚੂਗਾ। 10,77,000 ਜਿਹੜੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਡ ਸੀਗੇ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਅਗਲਾ ਰਾਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲੂਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲੂਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਕੱਟੇ ਗਏ ਸੀ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਇਹ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਆਪਸ ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਚ ਆ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਏਰੀਏ ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਣ। ਫਿਰ ਜੇ ਕੋਈ ਮਿਊਚੁਅਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸਾ ਹੈਗਾ ਟੀਚਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸੋ ਸੌਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਊ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲੇ, ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬਦਲੀਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣੇ ਪੈਣ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸੌਖਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਆਪਕ ਜਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਿਰਫ 1 ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਪੋਰਟਲ ਖੁੱਲੂਗਾ ਜੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਦਲੀਆਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਫਰਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਕਿਸੇ ਦੇ, ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਕੋਈ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ वगैरह दे के वो बदली अपने नेड़े तेड़े दे स्कूल दी करवा सकता। आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट। प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहले दिन भक्तों की आस्था ने दर्शन का बनाया नया रिकॉर्ड। पहले दिन 5 लाख श्रद्धालुओं ने श्री राम दरबार में लगाई हाजिरी। दूसरे दिन भी दर्शनों के लिए लगी भक्तों की लंबी कतारें।
राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद दूसरे दिन आज भी राम भक्तों में रामलला के दर्शन के लिए भारी उत्साह है। मंगला आरती के साथ ही दर्शन निरंतर जारी है। मौके पर प्रमुख सचिव संजय प्रसाद, डीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार और स्थानीय अधिकारी मौजूद रहे। आज भीड़ सामान्य है। दरअसल प्राण प्रतिष्ठा के अगले दिन यानी मंगलवार को भारी भीड़ के मंदिर परिसर में घुसने से अव्यवस्था फैल गई थी। मुख्यमंत्री के साथ मंदिर में हुई अफसरों की बैठक में यह मामला उठा। इसके बाद यह तय हुआ कि मंदिर के बाहर से लंबी लाइन लगाकर दर्शन कराए जाएंगे। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने धैर्य के साथ दर्शन करने की अपील की। इसका असर बुधवार को दिखाई भी दिया। बुधवार को व्यवस्था के साथ दर्शन किए जा रहे हैं। हजारों लोगों के मंदिर परिसर में आ जाने के बाद भी दर्शन प्रक्रिया सुचारू रूप से बिना धक्के मुक्के के होती रही। लंबी लंबी कतारें सुबह से ही दिखनी शुरू हो गई। आज वरिष्ठ अधिकारी गर्भगृह में मौजूद हैं। सुबह से ही श्रद्धालुओं को व्यवस्थित तरीके से लाइनों में लगाकर दर्शन करवाया जा रहा है। श्रद्धालु जय श्री राम का जयकारा भी लगा रहे हैं। रामलला प्राण प्रतिष्ठा के बाद दूसरे दिन श्री रामलला के दर्शन के लिए रामपथ पर भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी है। इससे पहले रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के अगले दिन मंदिर मंगलवार को भी राम भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा था। राम जन्मभूमि पथ पर तड़के 3 बजे से ही श्रद्धालु पहुंचने लगे। प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहले दिन भक्तों की आस्था ने दर्शनों का भी नया रिकॉर्ड बनाया। आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट। ध्वजारोहण और झंडा फहराने में होता है काफी अंतर। गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति ही क्यों फहराते हैं झंडा, जानिए कारण। भारत अपना 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। हर साल 26 जनवरी के दिन देश भर में इस राष्ट्रीय त्योहार की रौनक रहती है। लोग हर्षोल्लास और उत्साह के साथ इस खास दिन को सेलिब्रेट करते हैं। यह दिन भारत में जनतंत्र की शक्ति को दर्शाता है। हर साल 21 तोपों की सलामी दी जाती है जब भारत के राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं। ऐसे में कई लोगों के मन में यह सवाल उठता है कि गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति झंडा फहराते हैं तो स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री क्यों ध्वजारोहण करते हैं। अगर आपके मन में भी यह सवाल उठ रहा है तो हम आपको बताएंगे आखिर ऐसा क्यों होता है। दरअसल 15 अगस्त 1947 के दिन जब भारत को आज़ादी मिली तो उस समय प्रधानमंत्री ही देश के मुखिया थे। इसी वजह से आज़ादी मिलने पर स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले से ध्वजारोहण किया था। लेकिन आज़ादी के बाद जब 26 जनवरी 1950 में देश का संविधान लागू किया गया तो राष्ट्रपति की शपथ ले चुके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के संवैधानिक प्रमुख थे। ऐसे में उन्होंने गणतंत्र दिवस के मौके पर झंडा फहराया था। तब से लेकर आज तक यह परंपरा चली आ रही है कि स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री ध्वजारोहण करते हैं और गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति झंडा फहराते हैं। बहुत कम लोग यह जानते होंगे कि ध्वजारोहण और झंडा फहराने में भी काफी अंतर है। दरअसल 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के मौके पर राष्ट्रीय ध्वज को ऊपर बांधा जाता है और वहीं से झंडा फहराया जाता है। इसलिए गणतंत्र दिवस के दिन ध्वजारोहण नहीं बल्कि झंडा फहराया जाता है। वहीं अगर बात करें स्वतंत्रता दिवस की तो 15 अगस्त के दिन राष्ट्रीय ध्वज को ऊपर की तरफ खींचा जाता है और फिर फहराया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब हमारा देश अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद हुआ था उस वक्त ब्रिटिश सरकार का झंडा उतारकर भारत का झंडा चढ़ाया गया था। यही वजह है कि 15 अगस्त के दिन तिरंगा ऊपर की तरफ खींचने के बाद फहराया जाता है। चंदन टीका लगाने वालों का राम मंदिर के पास डेरा, ललाट के साथ चेहरे पर श्री राम लिखवाने की मची होड़। चंदन टीका लगाने वालों ने राम मंदिर के पास डेरा जमा लिया है। सरयू के घाटों और राम की पैड़ी के परंपरागत स्थान से अपना काम समेट लिया गया है। वहीं आपको बता दें हनुमानगढ़ी में भीड़ बढ़ने पर दोपहर से एकल मार्ग व्यवस्था प्रभावी की गई है। सरयू में स्नान के बाद घाटों और राम की पैड़ी पर श्रद्धालुओं को चंदन टीका लगाने की परंपरा है। ललाट के साथ चेहरे पर श्री राम लिखवाने का भी चलन बढ़ा है। यहाँ पर यह काम करने वाले ज्यादातर पुरोहित मंगलवार को राम मंदिर के आसपास शिफ्ट हो गए। ऐसा इसलिए कि यहाँ पर भीड़ अपने पुराने रिकॉर्ड तोड़ने को आतुर दिखी। उधर हनुमानगढ़ी पर भक्तों की भीड़ बढ़ी तो दोपहर से दर्शन के लिए एकल मार्ग की व्यवस्था प्रभावी कर दी गई। रामलला के नवीन विग्रह की स्थापना के बाद मंगलवार को नव्य राम मंदिर के आसपास का नजारा बदला हुआ नजर आया। धर्म कर्म से जुड़े छोटा व्यवसाय करने वाले ज्यादातर लोगों ने यहीं पर अपना डेरा बना लिया। इसमें सर्वाधिक संख्या चंदन टीका लगाने वाले पुरोहितों की रही। ऐसे ही एक पुरोहित सुदर्शन तिवारी ने बताया कि आज सरयू घाट और राम की पैड़ी पर ज्यादा भीड़
नहीं आई। इस बीच जानकारी मिली कि भोर से ही राम मंदिर पर भक्तों की कतार लग गई तो ज्यादातर पुरोहित यहीं आ गए। राम मंदिर के सामने रामपथ पर राम मंदिर और रामलला के छोटे प्रतिरूप व केसरिया ध्वज बेचने वालों की संख्या भी बढ़ गई। कुछ युवा रामलला की आकृति के प्रिंट वाले टी शर्ट बेचते हुए भी नजर आए। इन्हें खरीदने की भी ललक लोगों में दिखाई दी। उधर हनुमानगढ़ी के आसपास भी सुबह से ही काफी भीड़ हो गई। मंगलवार होने के चलते वैसे भी इस दिन श्रद्धालुओं का जमावड़ा होता है, लेकिन इस मंगलवार की बात कुछ और ही थी। रामलला के साथ हनुमंत लला को भी श्रद्धा निवेदित करने की होड़ मची थी। ऐसे में दोपहर 1 बजे से हनुमानगढ़ी जाने वाले प्रमुख मार्ग के श्रृंगार हाट बैरियर पर एकल मार्ग व्यवस्था प्रभावी कर दी गई। इधर से मंदिर की ओर पैदल श्रद्धालुओं का प्रवेश रोक दिया गया, इसे निकासी मार्ग कर दिया गया। दर्शन के लिए भक्तों को हनुमानगढ़ी चौराहा से मंदिर की ओर भेजा गया। आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट। महिला होमगार्ड रजनी भाटिया मंदिर में दे रही हैं बेहतरीन सेवाएं। पिछले 30 सालों से कर रही हैं नौकरी। शक्तिपीठ चिंतपूर्णी मंदिर में ड्यूटी दे रही महिला होमगार्ड रजनी भाटिया पिछले काफी सालों से मंदिर में बेहतरीन सेवाएं दे रही हैं। होमगार्ड रजनी भाटिया को होमगार्ड की नौकरी करते 30 साल हो गए हैं और उनकी ड्यूटी कई बार चिंतपूर्णी मंदिर में लग चुकी है। रजनी भाटिया मंदिर में पूरी ईमानदारी से शिफ्टों में ड्यूटी देती नजर आती हैं। जिला यूना की रहने वाली होमगार्ड रजनी भाटिया ने बताया कि उनके 3 महीनों के बाद चिंतपूर्णी मंदिर में ड्यूटी लगाई जाती है। इसके अलावा मेलों के दौरान भी उनकी ड्यूटी चिंतपूर्णी मंदिर में लगती रहती है। मंदिर में भीड़ बढ़ने पर रजनी भाटिया अपने अधिकारियों के दिशा निर्देशों के अनुसार कार्य करती हैं। जहां पर भी उन्हें ड्यूटी पर लगाया जाता है वहां वे अपनी ड्यूटी बखूबी निभाती हैं। रजनी भाटिया ने बताया कि उन्हें अधिकारियों से जो भी आदेश मिलते हैं वे उसी के अनुसार मंदिर में ड्यूटी देती हैं। ड्यूटी देते हो मुझे 30 साल हो गए, कानवे से भर्ती हूँ मैं और 30 साल से बड़ी ईमानदारी से अपनी ड्यूटी होमगार्ड में कर रही हूँ। तो चिंतपूर्णी मंदिर में कब कब आपकी ड्यूटी लगती है? हर 3 महीने के बाद यहाँ पे डिप्लाई आती है और मैं अपनी ईमानदारी से यहाँ मंदिर चिंतपूर्णी माता के मंदिर में ड्यूटी करती हूँ। कहाँ के रहने वाले हैं आप? उन्ना से। तो जैसे कई बार भीड़ होती है मंदिर में जब सीजन होता है, तो भीड़ के समय कैसे भीड़ को नियंत्रित करते हैं आप? बड़े प्यार से सब यात्रियों को कोऑपरेट किया जाता है और आराम से उनको निकाला जाता है दर्शन करवाने के बाद। चिंतपूर्णी से अमन शर्मा की रिपोर्ट। अयोध्या से प्रभु श्री रामलला के दर्शन कर लौटे अभिनेता अमिताभ बच्चन ने एक्स पर लिखा, समय बड़ा बलवान। अमिताभ बच्चन को एक्टिंग के साथ साथ लिखने पढ़ने का भी शौक है। वह ब्लॉग के जरिए अपनी लाइफ और करियर से जुड़े किस्से को फैंस के जरिए बताते रहते हैं। इतना ही नहीं, हर सामाजिक और बड़े मुद्दों पर भी अपनी राय रखते हैं। अब उन्होंने एक क्रिप्टिक पोस्ट किया है। यह पोस्ट उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर उद्घाटन में शामिल होने के 1 दिन बाद किया है। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा कि समय बहुत बड़ा बलवान होता है। उनके इस पोस्ट पर फैंस तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं। अमिताभ बच्चन ने एक्स पर लिखा, T4900 समय बड़ा बलवान। उनके इस ट्वीट को लोग अलग अलग संदर्भ में देख रहे हैं। उन्होंने अपने ब्लॉग में यह भी शेयर किया कि उन्हें काम के सिलसिले में देर हो रही है। उन्होंने लिखा, मुझे देर हो गई है और काम के लिए मुझे तुरंत बुलाया जा रहा है, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ। मैं जल्द ही इस बारे में बात करूँगा। अमिताभ बच्चन ने अयोध्या से वापसी के बाद ऐतिहासिक दिन का हिस्सा होने के अपने अनुभव के बारे में खुलकर बात की। उन्होंने मंगलवार को अयोध्या के राम मंदिर से रामलला की मूर्ति के साथ एक तस्वीर शेयर की और भव्य समारोह के बारे में अपने विचार व्यक्त किए। अमिताभ बच्चन ने अपने ब्लॉग में लिखा, दिव्य भावना से भरा एक दिन, अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह से वापसी, उत्सव की महिमा और विश्वास की आस्था, श्री राम के जन्म पर मंदिर की भव्यता में डूबा हुआ। इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि आस्था का वर्णन नहीं होता। क्या आप कर सकते हैं? वही अगर बात करें वर्क फ्रंट की, तो अमिताभ बच्चन के पास कई प्रोजेक्ट्स हैं। इनमें प्रभास और दीपिका पादुकोण के साथ कल की 2898 AD और रजनीकांत के साथ वेट्टैयन में दिखाई देंगे। वेट्टैयन अमिताभ की पहली तमिल फिल्म है। आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट। राम मंदिर परिसर में अचानक आ पहुंचे बजरंगबली गर्भगृह में प्रभु श्री राम के किए दर्शन और पूजन। नजारा देखकर हर कोई हुआ हैरान।
प्रभु राम की नगरी अयोध्या अपने राम के रंग में रंगीन नजर आ रही है। चारों तरफ त्रेता का नजारा दिख रहा है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु अपने आराध्य प्रभु राम का लंबी लंबी कतारों में खड़े होकर दर्शन पूजन कर रहे हैं। देश ही नहीं विदेशों के भी राम भक्त भी धर्म नगरी अयोध्या पहुंचकर प्रभु राम का भव्य दर्शन कर भाव विभोर हो रहे हैं। भव्य मंदिर में विराजमान होने के बाद जहां लाखों की संख्या में राम भक्त दर्शन पूजन कर रहे हैं, तो वहीं अचानक कल शाम लगभग 6 बजे के आसपास राम मंदिर परिसर में उनके परम भक्त पवन पुत्र बजरंग बली भी गर्भगृह में प्रभु राम का दर्शन पूजन करने पहुंचे। इस बात की जानकारी खुद राम मंदिर ट्रस्ट दे रहा है। आपको बताते चले कि लाखों की संख्या में पहुंचे राम भक्त जैसे जैसे प्रभु राम के गर्भगृह में दर्शन पूजन कर रहे थे, वैसे शाम को लगभग 6 बजे अचानक एक बंदर राम मंदिर के दक्षिणी द्वार से गुण मंडप होते हुए गर्भगृह में पहुंच गया। उस दौरान उत्सव मूर्ति के पास खड़ा होकर प्रभु राम से प्रार्थना करने लगा। वहां खड़े सुरक्षा कर्मियों ने जब उस बंदर को देखा तो सुरक्षा कर्मी भी हैरान हो गए। हालांकि सुरक्षा कर्मी को यह अंदेशा था कि कहीं यह बंदर उत्सव मूर्ति को जमीन पर ना गिरा दे, लेकिन जैसे ही पुलिसकर्मी बंदर की ओर दौड़ लगाते हैं, वैसे ही बंदर चुपचाप शांत और प्रभु की भक्ति में लीन नजर आने लगा। उसके बाद चुपचाप शांत भाव से उत्तरी द्वार की तरफ बंदर जाने लगा, जहां द्वार बंद होने के कारण पूर्व दिशा की ओर बढ़ा, जहां लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं का जमावड़ा था। बिना किसी को कष्ट पहुंचाए बंदर पूर्वी द्वार होते हुए बाहर निकल गया। आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट। आज सुबह कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री और क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू पाकिस्तान स्थित गुरुद्वारा श्री करतारपुर साहिब में नतमस्तक होने के लिए रवाना हुए। भारत की तरफ करतारपुर कॉरिडोर पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि वह पूरी दुनिया में प्यार और शांति की दुआ के लिए आज जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि दो देशों का सवाल ही नहीं उठता। आज पूरी दुनिया में युद्ध का माहौल है और शांति और आपसी भाईचारे का संदेश लेकर जा रहे हैं। आपसी प्यार बढ़ाने की ज़रूरत है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि चाहे यह रास्ता खोल दिया गया हो, लेकिन यहाँ अभी भी बहुत रुकावटें हैं। जैसे बहुत से लोग, खास तौर पर बुजुर्ग और बाकी लोग वहाँ जाने का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन वह वहाँ जाकर दर्शन नहीं कर पा रहे। चाहे $20 की फीस हो या पासपोर्ट, सरकार को इसका भुगतान करना चाहिए और उन्हें दर्शन करने देना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वाघा के रास्ते भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापार खोला जाना चाहिए। इससे पंजाब और दोनों देश समृद्ध होंगे। पंजाब को लाहौर के साथ यहाँ व्यापार करना चाहिए। देखो, शुकराना हर पल हर वक्त करना चाहिए। गुरु दी मेहर दा, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट दा, समृद्धि दा और असंख्य संभावनावां जड़ियां ये लांघा लेके आया। मैं अजे भी इस लांघे दी जिहड़ी पोटेंशियल है ना, उन्होंने अनलॉक्ड देखना। इनू जिन्ना असी अनलॉक कर लांगे, ये उन्ना मानवता दा भला कर। पौनी सदी पहला असां सरहदां उत्ते कढ लईआं कंधां, ते जे कढ लईआं कंधां इनू सरावां या मैं निंदा। जे कढ लईआं कंधां इनू सरावां या मैं निंदा। पर यारो एक गल आखनी मैं खास चाहना, कंधां होण उत्ते मूरतां प्यारियां भी होण, कंधां होण उत्ते मूरतां प्यारियां भी होण, कंधां अन्नियां ना होण, बूहे बारियां भी होण, ते बूहे बारियां चो लंघ आवे दोस्ती ते प्यार। बूहे बारियां चो लंघ आवे दोस्ती ते प्यार। ਉਹ ਸਾਡਾ ਮੇਲ ਜੋਲ ਰਵੇ, ਸਾਡਾ ਮੇਲ ਜੋਲ ਰਵੇ ਯਾਰੋ। ਵਧੇ ਵਣਜ ਵਪਾਰ, ਵਧੇ ਵਣਜ ਵਪਾਰ। ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਬਾਬੇ ਦਾ, ਇਹ ਉਸ ਪਾਰਸ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਛੂੰਹਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਗੌਰਵ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਕੀ ਔਕਾਤ ਹੈ? ਫੇਰ ਆਖ ਦੇਣਾ ਉਸ ਘਰ ਦਾ ਨੌਕਰ, ਸ਼ਾਕਰ ਹੈ, ਕੂਕਰ ਹੈ, ਵਫਾਦਾਰੀ। ਠਹਿਰ ਜਾ ਹੁਣ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਣੀ।
मैं गल समुंदर की करदा, इहनूं टोभे च ना सिੱਟੀ मित्र प्यारे। ਇਹ ਦੋ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੁੱਲ ਜਹਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਲਾਂਘੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਕੁੱਲ ਜਹਾਨ ਦੀ। ਇਹ ਉਹ ਮੁਕੱਦਸ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੰਡੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ। ਸ਼ਤਾਬਦੀਆਂ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਲਕਨ ਰੂਟ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਔਰ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ, ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ, ਰਸ਼ੀਆ, ਯੂਰਪ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵਪਾਰ ਚੱਲ ਸੀ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰੀਏ ਚਿੱਟੇ ਕੁੜਤੇ ਪਜਾਮੇ ਪਾ ਕੇ ਬਲਕ ਬੁਖਾਰੇ, ਉੱਥੇ ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਸੁਖ ਛੱਜੂ ਦੇ ਚਬਾਰੇ ਨਾ ਬਲਕ ਨਾ ਬੁਖਾਰੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਪਿਆ, ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ? ਇੱਥੋਂ ਜਾਂਦੇ ਖੜਾਕ ਦੇਣੇ ਇਸਲਾਮੀਆ ਕਾਲਜ, ਹਾਕੀ ਖੇਡ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ, ਸਮਝਿਆ? ਸਮਝੌਤਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਸ਼ੌਂਕ ਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦੀ ਜਾਂਦੀ, ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਾਣ, ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨ। ਕੋਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਭਾਈ, ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੋਈ ਹੈ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਐਸਐਸਪੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬੇ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ, ਜੋੜਨ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਤੇ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ, ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ, ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ, ਪੀਸ ਬਿਗੇਟਸ ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ। ਜਿੱਥੇ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਹੋਊ ਉੱਥੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੋਊ, ਵਪਾਰ ਹੋਊ, ਉੱਥੇ ਛੋਟਾ ਵਪਾਰੀ ਪਨਪੂ, ਉੱਥੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਫਾਇਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਸੀ ਸਾਂਝ ਪਨਪੂ। ਇਹ ਪੀਪਲ ਟੂ ਪੀਪਲ ਕੰਟੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਲੰਘ, ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਇੱਕ ਨੇ, ਖਾਣ ਪਾਣ ਇੱਕ ਹੈ। ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਇੱਕ ਨੇ, ਖਾਣ ਪਾਣ ਇੱਕ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਤਾਂ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਨੇ, ਟੌਰ ਟੱਪੇ ਇੱਕ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਭਾਵਾਂ ਬਾਜਵੇ ਹੋਣ, ਭਾਵਾਂ ਚੀਮੇ ਹੋਣ, ਜਾਤਾਂ ਗੋਤਰ ਇੱਕ ਨੇ, ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਲਚਰ ਇੱਕ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹੌਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਜਾ ਕੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਚੁੱਕਦੇ, ਪਲਕਾਂ ਤੇ ਵਿਛਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਡ ਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ ਨਾ, 37 ਬਿਲੀਅਨ ਯੂਐਸ ਡਾਲਰ ਹੈ। 37 ਬਿਲੀਅਨ, 1 ਬਿਲੀਅਨ ਚ 100 ਕਰੋੜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 37 ਬਿਲੀਅਨ ਯੂਐਸ ਡਾਲਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ 2 बिलियन यूएस डॉलर तक पहुंचे। आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट। आज के समाचार बस यहीं तक। कल फिर हाजिर होंगे नए समाचारों के साथ। तब तक आप देखते रहिए आत्मा चैनल। धन्यवाद।